students, welcome to OSN Academy Private Limited. I am Divya Singh, the Faculty of Management and Commerce over here, and on behalf of all the OSN family, I welcome you all over here. So, today we are going to learn a very important topic in the marketing section of the UGC NET, that is the product life cycle. So, as you all know, a product goes through different stages during its lifetime to cope up with the market challenges and to go through different stages so that it can be, sustainable in the markets. So first, we'll try and learn about that what is product life cycle. So product life cycle basically comprises of two words, that is product and life cycle. So here, firstly, we'll learn about what is product. As we all know, product is something which is offered in the market by the seller to the consumer, which is of some value to the customer. It holds some value or some benefits to the customer. That is why only it is being offered and the customer will end up in purchasing that product. Now we come to life cycle. What is life cycle? See, as a human being, we also go through different stages in life. First we are born, then we are kids or we are infants, then we grow to adolescent stage, and then उसके बाद हम जो है adult stage पर जाते हैं, then we grow older and finally जो है हमारी life cycle end हो जाती है. तो similarly a product has a life cycle which is similar to that of a human cycle. So basically if I talk about what life cycle is, life cycle means from being born till the time it lasts or survives within our atmosphere or environment, that is known as a life cycle. So like human life cycles, product has also a life cycle which starts from being its birth, that is launching in the market, till it declines or sustains in the market. So these two words comprises of a term that we call product life cycle. और अगर हम इसको एक साथ बोलें तो a offering or something which has a value to the customer that we offer in the market and the different stages which it goes through is known as product life cycle. अब इस product life cycle जो होती है different stages, like हम human beings भी अपने life के different stages में क्या करते हैं, different challenges से go through करते हैं, वैसे ही product भी है that goes through different challenges during its life cycle. So, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, देन हम उसके चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे. तो बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है. इट इज अ बेल शेप्ड कर्व लाइक दिस, एक्चुअली दिस बेल शेप्ड कर्व लाइक दिस, जो कि 4 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइडेड है. 1, 2, 3 and this is 4. First we'll talk about this first stage. This first stage is known as the introduction stage. Here क्या होता है कि कोई भी एक नया product है that is being newly launched in the market. Customer do not know anything about these products and ये बिल्कुल ही नया और innovative product होता है जो कि एक market में launch किया जाता है. इससे पहले वो product कभी भी market में नहीं आता. This is called the introduction stage. Next is the growth stage. Growth जैसे आप नाम से ही समझ रहे होंगे, जब आपने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है विद इन द मार्केट, देन आफ्टर सम टाइम पीपल tend to recognize your product. Some of the people have used your products as well. तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारा प्रोडक्ट ग्रो करता है. People come to know that what our product is, how useful it is and why should we use it. So that time our sales, this bell curve represent the sales. तो यहाँ पे introduction stage पे our sales is low and during the growth stage we have the maximum sales, as you can find out from this graph. So here in the growth stage till here to here we have reached our maximum growth. Now the third stage is maturity stage.
Maturity as the name suggests कि प्रोडक्ट बिल्कुल ही मच्योर हो गया है, यानी कि स्टैग्नेंट हो गया है। इस स्टेज पे क्या होता है कि जो भी हमारे प्रोडक्ट की सेल्स होती है या हमारे प्रोडक्ट की ग्रोथ होती है, दैट इज स्टैग्नेंट, यानी कि जितने भी लोगों ने आपका प्रोडक्ट यूज करना था वो कर चुके हैं। नाउ अब कोई भी मार्केट नहीं बची है या कोई भी ऐसी चीज नहीं बची है जिससे आपकी ग्रोथ शूट अप हो। दैट्स व्हाई ये जो कर्व है ये थोड़ा स्टैग्नेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारी ग्रोथ बिल्कुल स्टेबल होती है, इंक्रीज नहीं होती ना ही डिक्रीज होती है, बट स्टैग्नेंट रहती है। एंड नेक्स्ट इज द फोर्थ स्टेज विच इज कॉल्ड द डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पे जो हमारी सेल्स ग्रोथ है वो डाउनवर्ड्स जा रही है। दैट इज द कंपनी हैज स्टार्टेड टू गेन लॉसेस ओवर हियर, और इसके बाद हमारा प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिट देने के केपेबल नहीं है। So these were the 4 different stages. अब in different stages में obviously different challenges हैं, तो we'll have to have different strategies to tackle them. Okay, now firstly we'll come to know that कि हमारे introduction stage पे what are the strategies. जब हम बात करते हैं introduction stage की, first stage is introduction stage. Here जैसे मैंने आपको अभी briefings दिए थे, introduction stage में जो प्रोडक्ट है दैट इज बिन न्यूली एंटर्ड इनटू द मार्केट, कोई भी जो भी कस्टमर्स हैं उनको पता नहीं है दैट व्हाट आवर प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट। सो इस स्टेज में क्या होता है, न्यूली हम अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, नोबडी हैज एन आइडिया दैट व्हाट आवर प्रोडक्ट इज। तो इसके साथ सबसे पहले ये नाम सुनते ही आपको एक स्ट्रैटेजी समझ में या एक चैलेंज समझ में आ रहा होगा कि किसी को पता ही नहीं है, तो हम ये कैसे लोगों को पता लगा, हाउ विल पीपल कम टू नो दैट व्हाट आवर प्रोडक्ट इज। तो इसका सबसे पहला चैलेंज ये होता है दैट नोबडी नोज व्हाट आवर प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट। सो इस स्टेज में प्रॉफिट के लिए सीख करना वुड बी अ वेरी बहुत ही गलत ऑप्शन होगा अगर हम सोचे कि इस स्टेज में आते ही हमको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने लगे। ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें हमें लॉन्चिंग के वक्त सबसे कम प्रॉफिट जो है हमारी मार्केट से मिलता है, बिकॉज अभी लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। तो व्हाट वी डू इज कि इस स्टेज में हमारा प्रोडक्ट या तो जीरो होता है या अगर होता भी है तो बहुत लो होता है, एंड जनरली इन ऑल द केसेस हमारे साथ जो हमारा प्रोडक्ट का प्रॉफिट होता है वो नेगेटिव में होता है। सो जो इसके चैलेंजेस हैं, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज होगी? फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज कि हमें अपना प्रमोशनल एक्सपेंडिचर जो है अपने हाईएस्ट पे रखना पड़ेगा, बिकॉज नोबडी नो व्हाट आवर प्रोडक्ट इज। तो जितना ज्यादा हम प्रमोशन करेंगे, जितने ज्यादा हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जितना पर्सनल सेलिंग करेंगे, या प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है व्हाट प्रोडक्ट इट इज, उस काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट या सेल्स को हम प्रेफरेंस देंगे एट द हाईएस्ट रेशियो। अगर आपने ज्यादा प्रमोशन नहीं किया तो आपका बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो प्रोडक्ट है वो इंट्रोडक्शन स्टेज से ही कोलैप्स करने लग जाए। तो फर्स्टली हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होगा। सेकेंडली जब हमने न्यूली अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है तो व्हाट विल हैपन इज कि हमने कॉस्ट बहुत सारा उसमें इन्वॉल्व कर दिया। वी हैव हैड द परचेजिंग कॉस्ट, द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, द सेल्स कॉस्ट, एवरीथिंग हैज बीन एडेड अप टू. So, and company also want to make profits out of it. So what we'll do is the price of the product, the company will mark up it as high rates. Why high rates? Because अगर हम उसको high rate पे markup नहीं करेंगे, then what will happen is that company will not be able to cope up with the losses or the expenses it has already borne. ओके, नेक्स्टली व्हाट द चैलेंज इज कि जब अगर हम हाई प्राइस पे रख रहे हैं अपने प्रोडक्ट को तो ऑब्वियसली अ लोअर इनकम ग्रुप और अ मिडिल इनकम ग्रुप विल नॉट बी एबल टू परचेज आवर प्रोडक्ट. सो आवर टारगेट कस्टमर ओवर देयर विल बी अ ग्रुप विच इज ऑफ अ हाई इनकम लेवल, राइट? सो आई टेक अ एग्जांपल हियर ऑफ आईफोन. फर्स्टली इंडिया में जब आईफोन लॉन्च हुआ था देयर वाज नो फोन सिमिलर टू आईफोन. The technology it had, the features it had, the premium quality it had, no other phone was even equal or nearer to it. So एक उसके पास advantage था introduction stage में that a new product has been launched in the market.
सेकेंडली व्हाट हैपेंड कि ऑब्वियसली उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतना ज़्यादा था, एंड सेकेंडली उसने इंडिया में भी उसको जो है शिप किया था, तो उसका कॉस्ट ऑटोमेटिकली इतना ज़्यादा हो गया कि वो स्टार्टिंग प्राइस ही बहुत ज़्यादा हो गया। फिर हमने एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा उस पर किया, और जब हमने एक्सपेंडिचर किया मार्केटिंग का उस पर, देन हमने उसको एज अ स्टेटस सिंबल बनाया कि दिस प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव एंड इफ यू हैव दिस प्रोडक्ट इट विल बी अ स्टेटस सिंबल फॉर यू ऑल। दैट्स वाई क्या हुआ कि उसने सिर्फ हाई इनकम ग्रुप के जो भी कस्टमर्स थे उनको फोकस करना शुरू किया। सो दिस वॉज अबाउट द इंट्रोडक्शन स्टेज। थैंक यू।